السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولز۔ ناول جاری من کے ایپیسوڈ نمبر 6 سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرتضیٰ صاحب اور زیان ان کے پاس کھڑے تھے۔ انہیں ابھی ہوش آیا تھا مگر کچھ حرکت نہیں کر پا رہے تھے، آنکھیں بند تھیں۔ چاچو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں آپ بہت جلد صحتیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، ان کا کینولا لگا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ مرتضیٰ صاحب بھی بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مناہل، انہوں نے ہلکی آواز میں کہا تو ذہن کے اندر غصے کا ابال اٹھنے لگا۔ اس لڑکی کو 2 بار راہم کے ذریعے بلوا چکا تھا مگر وہ اب تک نہ آئی تھی۔ ابرار وہ آ جائے گی، تم پریشان مت ہو، انہوں نے تسلی دی۔ میرے بعد ان کا خیال رکھنا، اٹک اٹک کر بولے تو مرتضیٰ صاحب نزدیک آ گئے۔ کیسی باتیں کر رہے ابرار، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ان کی آنکھوں میں بھرے آنسو دیکھ کر پریشانی سے بولے۔ میں کچھ نہ کر سکا ان کے لیے، ندامت سے کہتے ایک بار پھر ان کی حالت بگڑنے لگی۔ ابرار، چاچو کیا ہوا آپ کو؟ چاچو ان کی تکلیف پر تکلیف کے تاثرات دیکھ کر دونوں فکر مندی سے بولے۔ مناہل، میری بچی، بس ان کے منہ پر یہی فریاد تھی۔ مجھے مناہل کے ماموں کا نمبر دو، ان سے بات کرنی ہے مجھے، ایک وہی ہیں جن کے قریب ہے بچی۔ ابرار صاحب کے روم سے نکلتے مرتضیٰ صاحب نے پرسوچ انداز میں کہا، اور جاؤ مناہل کو لے آؤ۔ اس کے چہرے کے سخت تاثرات کو دیکھ کر ہدایت کی تو خاموشی سے سر ہلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سارے راستے دماغ میں مختلف سوچیں گھومتی رہیں۔ پورچ میں کار روک کر وہ اندر کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا رخ مناہل کے کمرے کی جانب تھا۔ یلو کاٹن کے سوٹ پر باریک سے سفید دوپٹہ باندھے چائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ جب دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا، اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور مڑ کر دیکھا۔ سرخ آنکھوں کو لیے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ چلو 1 سیکنڈ میں کھڑی ہو۔ اس کا چاند سا چہرہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جو بالکل سرخ ہو رہی تھی۔ میں نہیں جا سکتی، میں انہیں نہیں دیکھ سکتی، آپ پلیز جائیں، اپنے آنسو رگڑ کر کہا۔ وہ تو پہلے ہی غصے میں تھا، اس کی بات اس کا دماغ گھوم گیا۔ بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ وہ اس پہاڑ جیسے وجود کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی، آنسو زاروں قطار آنکھوں سے گر رہے تھے۔ پلیز چھوڑیں مجھے، مسلسل مزاحمت کر رہی تھی مگر وہ کان بند کیے کار فرنٹ ڈور کھول کر اسے پٹک چکا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اب کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ تمہیں ذرا احساس نہیں ہے ایک شخص تمہیں پکار رہا ہے اور تم سفاک بنی بیٹھی ہو؟ اس نے غصے سے اسے دیکھا جو سر جھکائے رونے میں مگن تھی۔ رونا بند کرو اب، اس پر دھاڑ اٹھا۔ جس کی ہچکیاں بند گئی تھی اسے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر اسپیڈ بڑھا دی تھی۔ ہاسپٹل کی پارکنگ میں جھٹکے سے کار روکی تھی، خود اتر کر اسے بھی زبردستی کار سے اتارا تو ہاسپٹل کی جانب مڑتا اس کا ہر قدم من برکا ہو رہا تھا۔ شکر کرو تمہارا نام نہیں آیا ورنہ بائی سے ایک بار پھر مار کھاتے۔ رامین نے انہیں کال کر کے تمام حالات بتا دیے تھے اور وہ دونوں حیران تھے کہ آخر اسے کیا پڑ تھی مناہل کے کردار پر لگا داغ ہٹانے کی۔ عشا پیچ-و-تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ تمہارے بھائی کو کچھ زیادہ ہی ہمدردی کا بخار چڑھنے لگا ہے، ورنہ اسے کیا تھا کسی سے بھی افیئر چلتا اس کا۔ ابدال بری طرح مدمزہ ہوا تھا پلان فیل ہونے پر۔ صحیح کہہ رہی ہو، اب گھر والے اس ایڈیٹ کے آگے شرمندہ ہوتے پھر رہے ہیں، اوپر سے چاچو کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، عجیب ہی ماحول ہو گیا ہے۔ اس نے اکتا کر کہا۔ کیوں، انہیں کس بات کا صدمہ ہو گیا ہے؟ اس نے تپے ہوئے انداز میں کہا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ہوش میں نہیں آیا ابھی وہ اکتا کر بولی۔ وہ گھر کے ماحول سے تنگ آ گئی تھی۔ یہ ٹرپ ختم ہو جائے پھر آ کر تفصیل سے بات کرتے ہیں، پرسوچ انداز میں بولا تو وہ مسکرا دی۔ کیا کرنا ہے، بس ڈائریکٹ شادی کی بات کرنا، اور کیا، تو مسکرانہ لہجے میں بولی تو ابدال مسرور سا ہو گیا۔ کیا بات چھیڑ دی جہاز، اس کے لیے تو ابھی اڑ کر آ جاؤ، دل پر ہاتھ رکھتا مجنونانہ انداز میں بولا تو رامین طنزیہ مسکرا دی، کیونکہ نہ جانے کتنی لڑکیوں پر دل ہار چکا تھا وہ۔ اچھا چلو انجوائے کرو تم، بعد میں بات کرتی ہوں۔ اسے بائے کر کے فون رکھ دیا۔ آج پورے 15 دن ہو چکے تھے موہت سے کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا۔ عجیب جھنجھلائی ہوئی سی پھر رہی تھی، بس ایک بار چاچو کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ مناہل، دیکھنا میں کیسے تمہارے گھر سے نکلنے کا انتظام کرواتی ہوں۔ اپنی سوچوں میں گم تھے، فائقہ بیگم چلی آئی۔ رامین، جاؤ، جا کر 1 کپ چائے بنا کر فاطمہ کو دے آؤ، صوفے پر بیٹھتی بولی تو رامین نے برا سا منہ بنایا۔ میں تو نہیں جا رہی، ایک تو گھر میں عجیب ماحول ہو رہا ہے، اوپر سے کام بھی کرو، مناہل سے کہہ دیں، صوفے پر نیند دراز ہوتے ہوئے ناگواری سے بولی۔ اسے سے کہنے گئی تھی تو ہنا نے بتایا ہاسپٹل گئی ہے وہ۔ جاؤ، شاباش، چائے دے کر آنے کو، انہوں نے پچکارتے ہوئے کہا۔ یہ آنے کے بھی 90s کی ہیروئن کی طرح ڈرامے ختم نہیں ہو رہے۔ غصے سے بڑبڑا کر اٹھ گئی جبکہ ماں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ICU کے اندر داخل ہوئی تو خود بخود آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔
اس نے ایسا تو کبھی نہ چاہا تھا کہ اس کا باپ اتنا بے بس پڑا مشینوں کے ذریعے سانس لے رہا ہو۔ وہ یکدم ان کے قریب آئی اور نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ ابرار صاحب نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو ان کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ مناہل میرا بچہ، انہوں نے بھی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے معاف کر دیں بابا، میں بہت بری ہوں، زاروں قطار روتی معافی مانگنے لگی۔ نہیں میری جان، میں برا ہوں۔ انہوں نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ پلیز بابا ایسا نہ کہیں، وہ تڑپ کے اٹھی تھی۔ میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی بابا، روتے ہوئے ان کے دونوں ہاتھ تھام گئے۔ میں انصاف نہ کر سکا، میرا رب مجھے کیسے معاف کرے گا، درد سے تڑپتے ہوئے بولے۔ تو مناہل بھی ان کے درد پر تڑپ اٹھی تھی۔ آپ ٹھیک ہو جائیں بس بابا، پھر ہم ساتھ رہیں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے نم لہجے میں کہا۔ تو انہیں اور شدت سے رونا آنے لگا۔ وہ اللہ کی دی ہوئی رحمتوں کو کیسے نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ ان کے آنسو نے اس کے دل پر جمی ناراضگی کو پل بھر میں ہی صاف کر دیا تھا۔ وہ اتنی سنگ دل اور بے حس نہ تھی کہ باپ کو بستر مرگ پر دیکھ کر بھی نہ پگھلتی۔ مناہل بیٹا، ہمیں آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ مرتضیٰ صاحب اس کے سامنے صوفے پر بیٹھے تو مناہل کو یکدم گھبراہٹ سی ہو گئی۔ کیسی بات بڑے پاپا؟ اس نے خوف سے پوچھا۔ ابرار کی خواہش ہے کہ بلکہ ہم بڑے یہ چاہتے ہیں تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ مرتضیٰ صاحب کی بات اس کے اعصاب پر بم بن کر گری تھی۔ وہ ساکت سی بیٹھی، انہیں پھر اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ اس کو یقین نہیں آیا تھا وہ کیا کہہ رہے تھے۔ کان سائیں کرنے لگے تھے۔ اس کی چپ دیکھ کر ابرار صاحب اس کے آگے ہاتھ جوڑنے جا رہے تھے۔ مناہل کا اسی وقت سکتہ ٹوٹا اور ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بابا مجھے یوں گنہگار نہ کریں پلیز، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ روتے ہوئے ان کے ہاتھ چومتی ہوئی بولی، میں تمہیں محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں، انہوں نے بہت مشکل سے کہا۔ وہ خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ بیٹا مولوی صاحب کو اندر بلا رہے ہیں، سر سے دوپٹہ اوڑھ لو، وہاب صاحب نے اسے پیار سے کہا تو وہ حیرت سے ان سب کو دیکھنے لگی۔ مطلب اس وقت کسی اور کا نام لکھی جا رہی تھی، مگر اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ ایک نظر باپ کو دیکھ کر جو ضرورت پڑتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے، پھر اس نے تمام سوچوں کو جھٹک کر سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا۔ ماموں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ علی بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا جو مرتضیٰ صاحب کے کہنے پر ماموں کو یہاں لایا تھا۔ تو کیا بابا نے ایک خیال ذہن سے گزرا، آنکھیں ایک بار پھر سے نم ہونے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ نکاح واقعی اس کا مضبوط سہارا تھا یا ایک اور آزمائش۔ گھر کے تمام مرد موجود تھے اور ایک دو لڑکے مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اسے بھی ماموں نے اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ مناہل ابرار ولد ابرار حیدر، کیا آپ کو ذیان حیدر ولد مرتضیٰ حیدر سے بعوض 10 لاکھ روپے حق مہر یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا تو مناہل نے چونک کر بابا کو دیکھا اور پھر ذیان کو جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک بار پھر دہرایا، بولو بیٹا۔ ماموں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، گلے میں آنسو کا گولا ٹکنے لگا۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہ تھا، وہ خود کو ایک بند گلی میں جاتا محسوس کر رہی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے کہتے سر جھکا گئی تھی۔ تمام ایجاب و قبول کی رسم کے بعد سب مبارکباد دینے لگے۔ ماموں نے اسے گلے لگا لیا، علی نے بھی ذیان کے گلے لگایا تھا۔ مبارک ہو برادر، ہماری برادری میں شامل ہو گئے آج آپ بھی۔ راہم نے گلے لگاتے ہوئے چھیڑا، نہیں میں ابھی گدھا تو بالکل نہیں بنا۔ ذیان نے کافی سیریت انداز میں کہا تو راہم اسے گھور کر رہ گیا، جبکہ تمام افراد مسکرا دیے۔ ابرار اب تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی رخصتی کریں گے، وہاب صاحب نے محبت سے مناہل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ذیان نے بھی ایک نظر سر جھکائے بیٹھی مناہل پر ڈالی اور اپنے دوست کو سی اپ کرنے سے روم سے نکل گیا۔ میری بہنا بن گئی دلہنیا، علی نے اس کے پاس آ کر ہلکے سے چھیڑا جس پر وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ خوش رہو، ماموں نے اسے پیار کیا اور سب کو خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ بابا نے مناہل کو اپنے پاس بلایا، مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے پوچھا تو اس نے سر جھکائے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ انہیں اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ بیٹا آؤ گھر چلیں، وہاب صاحب نے اسے چلنے کو کہا۔ میں بابا کے پاس رکنا چاہتی ہوں، ان کے پاس رکنا چاہتی تھی، ان کا لمس محسوس کرنا چاہتی تھی۔ نہیں بیٹا، راہم رکے گا، 2 دن سے زیادہ ذیان رک رہا تھا اور ویسے بھی ایک گارڈ روم کے باہر کھڑا ہے، ہر وقت آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے ایک نظر باپ کو دیکھا اور خدا حافظ کہتے باہر نکل گئی۔ باہر 2 گاڑیوں کے پاس گارڈ کھڑے تھے، وہ وہاب صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ذیان کار ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ مرتضیٰ صاحب دوسری گاڑی میں تھے۔ اس کے وقتاً فوقتاً بیک ویو مرر میں نظریں اٹھ رہی تھیں۔ وہ کھڑکی کے باہر مناظر دیکھتی کسی سوچ میں گم تھی۔ چہرہ رونے کی وجہ سے اب تک سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی نظریں ہٹا لی، ایک عجیب سی بے چینی اس نے اپنے اندر محسوس کی تھی، جسے نظر انداز کر کے احتیاط سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔
जिस दिन से हॉस्पिटल से वापस आई थी, एक खौफ से दिल में बैठ गया था। वो जिस शख्स से लड़ती बदतमीजी करती थी, वो शख्स इसे तब नहीं बख्शता था। अब तो इस हाकमियत पसंद शख्स को सर्टिफिकेट मिल गया था। बाबा ने सचिन महफूज हाथों में दिया था। वो तो पहले उसे अपनी जहांगीर समझकर अपना हुक्म चलाता था। निकाह के बाद से वही शख्स की परछाई से भी बचकर फिर रही थी। वो नहीं जानती थी उसने क्यों निकाह के लिए रजामंदी दी, जबकि इसे अपनी माँ, बहन और ख़ासकर इस शख्स के साफ रद्द-ए-अमल का अच्छी तरह अंदाज़ा होगा। वो सब इसे ही कसूरवार ठहराएंगे। मुख्तलिफ सोचों में उलझी बैठी थी। जब उसे पुकार थी तो वह किचन में आ गई। अभी बाबा का खाना तैयार है, ज़ियान भाई लेकर जाएंगे। बाबा का सूप बना रही थी जब ज़ियान के जिक्र पर उसका हाथ लरज़ा। उसने महज सर हिला दिया। इन 2 दिनों में बाबा की तबीयत में कुछ बेहतरी आई थी। फातिमा बेगम भी 1-2 घंटे के लिए हॉस्पिटल चली जाती थी। ज़ियान सुबह 10 बजे ही हॉस्पिटल से आया था। मनाहिल ज़ियान के लिए चाय और खाने में कुछ बना कर दिया। सुबह से भूखा सो रहा है। ताईजान ने किचन में आकर फरमान जारी किया तो वह आँख से उन्हें देखने लगी। क्या हुआ, क्या कह रही हूँ मैं, सुना नहीं तुमने? उसकी शक्ल देखकर नागवारी से बोली। वो एकदम सीधी हो गई। ताई अम्मी, मैं बाबा का खाना पैक कर रही हूँ, उसने बहाना तराशा। तो कितनी देर लगती है पैक करने में? पहले जो कह रही हूँ वो करो। उसे झाड़ती किचन से बाहर निकल गई। उसने गुस्से से एप्रन खोलकर स्लीप पर फेंका। ये तो पहले ही सांस बनी घूमती, जब पता चलेगा इनके लाले सपूत की बीवी हो तो गला ही दबा देगी। गुस्से से बड़बड़ाई, फिर खुद पर हैरत हुई। बीवी? मोमिन की बेटी की? उसे फिर से गम और गुस्सा सवार होने लगा था। बाबा जी की सजा आप में फंसा दिया आपने। अपनी बेबसी पर वहीं सर पकड़ कर बैठ गई। मोबाइल में मौजूद इस दुश्मनी जहां की तस्वीरें न जाने कितनी बार देख चुका था। वो पाकिस्तान से सिर्फ इसके वजूद उसकी यादों से पीछे छुड़ाने जहाँ आया था, मगर इसे क्या मालूम था वो यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। हर वक्त उसे ख्याल में आकर तड़पाएगी। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा था। वो क्यों उसे नहीं भूल पा रहा था जब वो थी ही नहीं उसकी किस्मत में। कैसी बेबसी थी कि उसका महबूब किसी और से मोहब्बत करता था। किसी बात पर मुस्कुराती, अपनी लीटी कान के पीछे करती मासूम सी लड़की उसके दिल में बड़े धड़ल्ले से बैठी थी। वो बार बार उसकी हर फिक्र जूम करके देखता। ये तस्वीर उसकी बेखबरी में कर ली गई थी। वो जानता था अगर मनाहिल को पता चल जाता कि उसकी पिक्स उसके मोबाइल में है तो दुश्मनी जहाँ उसका ये कीमती असासा भी छीन लेती। वह कर्ब से मुस्कुरा दिया। मेरी दुआ है मनाहिल, जिस शख्स के साथ भी रहो और तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे। अब भी उसने अपने संग दिल महबूब को दिल से दुआ दी थी। बाहर बर्फबारी हो रही थी, मगर उसके दिल में लगी आग को ठंडा करने के लिए नाकाफी थी। वो सर सोफे की कुछ टिकाए बैठा था जब रामीन कालिंग ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जह किया। हेलो। आवाज़ को नॉर्मल रखा जबकि दूसरी जानिब बैठी वो पागल लड़की उसकी आवाज़ सुनकर जी उठी थी। हेलो मोहित। मोहित मुझे बगैर बताए लंदन चले गए। तुम मुझसे इतना नाराज़ क्यों हो गए हो? वो बात करते करते रोने लगी। मोहित एकदम घबरा गया। रामीन, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ यार, प्लीज़ चुप हो जाओ। उसने रामीन के आंसू पर बंद बांधना चाहा। तो तुम बात क्यों नहीं करते मुझसे? उसने रोते हुए फिर शिकवा किया। अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने बहुत गलत किया, वैसा कुछ नहीं होगा, तुम चुप तो हो। उसके इतने मीठे लहजे पर उसके दिल में लगी आग को जैसे पानी के छींटे पड़े थे। इस तरह क्यों चले गए अचानक? अपने आंसू पहुँच कर खफकी से बोली। बस यार, कुछ वेकेशन से एंजॉय करना चाहता था, इस रूटीन से उकता गया था। आम से अंदाज में बोला तो वो भी मुतमईन से हो गई। अच्छा, वापस कब आ रहे हो? बेताबी से पूछा गया। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। एक ठंडी सांस खारिज करता बोला। फिर वो दोनों काफ़ी देर तक बात करते रहे। उसे अपना ज़हन बटाने के लिए किसी की ज़रूरत थी। इनका ख्याल रखना। अटक अटक कर कह रहे थे। मैं मैं कुछ ना कर सका उनके लिए, नदामत से कहते, पर फिर उनकी हालत बिगड़ने लगी। इब्रार चाचू, क्या हुआ आपको? चाचू, उनके चेहरे पर तकलीफ के तासुरात देखकर वो दोनों फिक्रमंदी से बोले। मनाहिल, मेरी बच्ची, बस उनके मुँह पर यही फरियाद थी। मैं अभी निकाह करना चाहता हूँ मनाहिल से। ज़ियान इब्रार साहब की फिक्रमंदी समझ गया था और लम्हों में फैसला किया था। मुर्तज़ा साहब ने हैरत और खुशी से अपने बेटे को देखकर इब्रार साहब ने ज़ियान के हाथ पर गिरफ्त मजबूत की थी। हाँ इब्रार, मेरी भी यही दिली ख्वाहिश है। उन्होंने भी उसे खुशी से कहा तो फौरी तौर पर निकाह का इंतज़ाम किया गया था। उसे नहीं मालूम था कि कैसे उसने लम्हों में फैसला किया था, शायद चाचू की बेबसी देखकर या फिर कुछ और वजह थी, वो समझ ना सका था। मगर निकाह के बाद से वो बहुत मुतमईन हो गया था। चाचू भी रिकवर होना शुरू हो गए थे, लेकिन असला मसला मामा का था, उनके रिएक्शन का। उसे मालूम था कि उससे बहुत खफा होने वाले, लेकिन उन्हें मनाना चाहता था। इन्हीं बातों को सोचते वॉशरूम से निकला तो सामने का मंजर देखकर खुशगवार से एहसास हुआ। ग्रीन कमीज, सलवार पर ग्रीन शिफॉन का दुपट्टा ओढ़े,
बालों का जूड़ा बनाए मनाहिल उसके लिए चाय और सैंडविच लाई थी। उसे वो कुछ इजलत में लगी, लबों पर गहरी मुस्कुराहट लिए बिल्कुल से पीछे आ खड़ा हुआ। वो जो ट्रे रखते इजलत में मुड़ी थी, बुरी तरह किसी पत्थर से टकराई। आउच! अपने माथे पर हाथ रखकर नजरें उठाई तो आंखें फट गई। फौरन दूसरा हाथ आंखों पर रखा, क्योंकि रुख मोड़ने की जगह न थी। वो आज भी बगैर शर्ट के था। उसकी इस हरकत पर से वो आज भी महफूज हुआ था। हटे यहाँ किसी, तो पता नहीं क्या मसला है आपके साथ, हर वक्त बेशर्मों की तरह घूमते रहते हैं। उसने दांत पीसते हुए कहा, माथे की तकलीफ बुलाकर साड़ी से निकालना चाहा। तुम्हें पता भी है बेशर्म कैसे होते हैं? मन उसका हाथ आंखों से हटाकर उसकी कमर के पीछे ले गया। मनाहिल ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर जिया ने उसका दूसरा हाथ भी उसके कमर के पीछे बांध दिया और उसकी आंखों में गौर से देखने लगा। जो मुसलसल मुजाहिमत कर रही थी, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। छोड़े मुझे, आपको शर्म नहीं आती? ये सब करते हुए उसने गुस्से से उसे दूर करना चाहा। जब मजीद करीब हो गया, उसकी इतनी गुर्बत पर उसे अपना दम निकलता महसूस हुआ। और अगर अभी कोई कमरे में आ जाता तो ये सोच नहीं उसने पानी पानी कर दिया था। कैसी शर्म बीवी हो मेरी। उसे गौर से देखकर उसके चेहरे पर झुकने लगा। मनाहिल का चेहरा शर्म हया से सुर्ख बड़ा, आंखों में नमी जमा होने लगी। वो निकाह मजबूरी में हुआ था। उसने दलील देनी चाहिए, हाथ में से असर छुड़ाने की कोशिश में थी। उसके बाद से जियान की आंखों का रंग बदला था। एक झटका देकर इंच भर का फासला भी खत्म कर दिया। अब दोबारा तुम्हारे मुंह से ये बकवास सुनी ना, तो इस कमरे से बाहर निकलने नहीं दूंगा। फिर खाना अगले दिन बैठकर अपने वलीमे का खाना, समझ आई? ये हमारे बड़ों का फैसला है, तुम राजी हो या ना हो, कबूल हर सूरत करना है। उसके इतने सख्त और बेबाक अंदाज पर मनाहिल से नजरें उठाना दूभर हो गई। गाल लग रहा था यकदम तप उठे हों। जान अपने गुस्से को भूले इस हसीन मंजर को देखने लगा। वो इतनी हसीन थी, इस बात का अंदाजा उसे आज हुआ था। उस पर हया की लाली ने कयामत तो उठा दी थी, मगर उसका ज़ब्त कमाल था। फिर भी उसे इस रिश्ते का एहसास दिलाने के लिए कुछ फासले मिटाता। अपना लम्स उसके गाल पर छोड़कर उसे आज़ाद कर गया। उसकी बेबाकी पर सख्त में आ गई थी। दिल बहुत तेजी से धड़का था। बेबसी से अपना लब काटती, आंखों में आंसू लेता ही गुस्से से उसे देखा जो बालों को उठावा से रगड़ता, गहरी नजरों से उसका जायजा ले रहा था। लबों पर कोई शौक धुन थी। उस शर्म के मारे तीर की तरह इसके कमरे से निकली थी और सीधा अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। तो खुद ब खुद आंखों से बाहर आने लगे थे। अपने गाल को दुपट्टे से जोर से रगड़ डाला। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे सुनाई क्यों नहीं ऐसी बेहुदा हरकत पे, मगर उसकी बेबाक गुफ्तगू, आंखों में आंसू लिए एक बार फिर सुख हो गई। या अल्लाह, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। हाथ खुद ब खुद उस गाल पर चला गया जहाँ अब भी उसका लम्स मौजूद था। इस शख्स को मैं कैसे रोकूंगी? या अल्लाह, इनको तो शिकायत भी किसी से नहीं कर सकती हूँ, और कहूँगी तो क्या? टेंशन में आकर अपना सर पकड़ती बैठती चली गई। उसका बस एक ही हाल था, उसे जितना हो सके इस शख्स से दूर रहना था। इब्रार साहब को घर शिफ्ट कर दिया गया था। उनकी तबीयत काफ़ी हद तक संभल गई। मनाहिल ही उनके खाने पीने का ख्याल रख रही थी। दुआ भी अब हर वक्त उनके पास पाई जाती थी। कभी कोई बुक सुना रही होती तो कभी अपनी बातें लेकर बैठ जाती और वो बहुत तवज्जो से उसकी बातें सुनते। वो इतने साल से खुदा की दी रहमतों से दूर रहे थे, ये सोचकर इनका दिल दुख से भर जाता। उसे सीने से लगा लेते और वो बाप की मोहब्बत मिलते ही निहाल हो जाती और अपने दिल की बातें उनसे शेयर करने लगती। फातिमा बेगम दोनों के इब्रार साहब के करीब देखकर अंदर अंदर तजुताब खा रही थी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ क्या था। बाबा ये पका वापस सर में दर्द कर देगी। मनाहिल इब्रार साहब के लिए खाना लाई थी और दुआन के बराबर में बैठी बातें कर रही थी। नहीं मेरी बेटी, तुम मुझे नहीं पका रही, तुम ये सूप लेकर वापस जाओ, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। उन्होंने उकता कर कहा, आपकी कौन सुन रहा है, पिए जल्दी, फिर मेडिसिन भी लेनी है। उसने ज़बरदस्ती सूप पिलाना शुरू कर दिया तो बाबा की शक्ल देखकर हंस पड़ी। उसके लबों पर भी मुस्कुराहट थी, जिसे मुसलसल रोकने की कोशिश कर रही थी। बस ले जा वापस, उन्होंने उसे घूर कर कहा। इसे फिनिश करे, फिर कल मैं आपके फेवरेट चीज़ पकौड़े बना कर दूंगी। उसकी शर्ट पर मिलाकर वो घुटने टेक गए थे। कमरे के बाहर खड़ी फातिमा बेगम ने नफरत से तीनों की मोहब्बत को देखा और तनतनाते हुए नीचे आ गई। सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे, सिवाय इन तीनों बाप बेटियों के। तमाम अफराद यहाँ मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है अब सबको बता देना चाहिए। मुर्तज़ा साहब ने जियान को देखकर कहा तो वह महज सर हिलाकर खाना खाने लगा। ऐसी क्या बात है? फाइका बेगम ने हैरत से शोहर और बेटे को देखा। तमाम ख़वातीन भी मुतजस्सिस सी मुर्तज़ा साहब को देखने लगी। आज से ठीक एक हफ्ते पहले हम बड़ों ने मनाहिल और जियान की रजामंदी से उनका निकाह कर दिया था। मुर्तज़ा साहब ने बहुत आराम से सबके सरों पर बम फोड़ा था।
फाइका बेगम, फातिमा बेगम और आमी तो जैसे सकते में आ गई थी, जबकि बाकी तमाम अफराद के चेहरे हैरत और खुशी से खिल उठे। ये क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने सख्त से निकल कर पूछा और एक गुस्सीली निगाह अपने बेटे पर डाली, जो बड़े आराम से खाना खा रहा था। क्यों, तुम खुश नहीं हो? उन्होंने एक नज़र अपनी बीवी पर डाली। आपने मेरे बेटे का निकाह कर दिया, वो भी बगैर मुझे बताए, और पूछ रहे हैं कि मैं खुश हूँ। वो गुस्से से बोली, क्यों, ये सिर्फ तुम्हारा बेटा है, इसके फैसला तुम करोगे क्या? इस बार उनका लहजा सख्त था। वो एकदम खामोश हो गई। लेकिन आपको हमें बताना तो चाहिए था, ये कोई तरीका हो भला? उनकी समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर जाए। इब्रार की हालत इस वक्त ऐसी न थी कि तुम सबको हम बताते फिरते और कौन सा भी रुख्सती हो गई। आप सब अपने अरमान अगले माह पूरे कर लीजिएगा, क्योंकि हमने रुख्सती अगले माह की फिक्स की है। अपनी बात मुकम्मल करके अपनी जगह से उठ गए थे। फातिमा बेगम भी किसी और की इतनी हिम्मत न थी कि उनकी बात से इनहराफ करते वो भी उठ खड़ी हुई। ज़ैन खाना खाकर मेरे पास आना ज़रा, उसे घूरती कमरे में चली गई। उनके पीछे फातिमा बेगम भी उठी थी। वहाँ ज़ैन भाई हमें पता भी नहीं लगने दिया और मैरिड हो गए। इन्होंने ज़ैन को छेड़ा। वह सब बड़ों के फैसले से बहुत खुश थी। तुम्हारे शोर को सब पता था, यह गवाहों में से था। ज़ैन ने तौबा का रुख राहम की तरफ कर दिया। हिना ने हैरत से अपने शोहर को देखा। क्या? राहम जो खीर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था यकदम गड़बड़ा गया। आपने बताया भी नहीं? वो इस पर चीख उठी। हाँ हिना, इनकी सही तरह से क्लास लो, इतने दिन से ब्रेकिंग न्यूज़ छुपा कर बैठे थे। रिदा भी उन दोनों को घूर रही थी, जबकि सौम्य बेगम और वहाब साहब मुस्कुराते हुए उठ गए। इसीलिए नहीं बताया था कि तुम लाउड स्पीकर पर ऐलान कर देती, उसने हंसते हुए कहा। और वो दुल्हन साहिबा कैसे खामोश है, इसको बताती हूँ अभी। हिना गुस्से में उठकर ऊपर की तरफ बढ़ी तो रिदा भी उसके साथ ही उठी थी। राहम ने शिखर का कलमा पढ़ा तो ज़ियान भी सरनफी मिलाता मुस्कुराता हुआ उठ गया। वो कब से खामोश बैठी थी, उसे समझ न आया कि ये सब कैसे हो गया। वो तो हमेशा के लिए उसे इस घर से भगाना चाहती थी। क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रही? राहम ने उसे देखकर न जाने किन सोचों में गुम थी। नहीं, ऐसी बात नहीं, भाई को मसला नहीं तो मुझे क्या मसला होगा? वो नॉर्मल अंदाज में कहती उठ गई थी। उसे अभी यह खबर ईशा को भी देनी थी। बेगैरत लड़की, जरा शर्म ना, इतनी बड़ी बात हम से छुपाते हुए। वो जब भी बाथरूम से निकली थी, हिना रिदा को गुस्से में अपनी यानी बढ़ते देख हैरान रह गई। क्या हुआ? उसने परेशानी से पूछा। हिना ने उसके कंधे पर थप्पड़ मारा। मियाँ वाली हो गई और हमें खाना खबर नहीं होने दी। उसने घूर कर उसे देखा। वो इसके इस तरह कहने पर यकदम झींप गई। रिदा ने उसे हाथ पकड़कर बेड पर बिठा लिया। मुझे तो खुद नहीं पता था, बाबा की तबीयत की वजह से ये सब हो गया। फिर जब बड़े पापा ने किसी को नहीं बताया था तो मैं कैसे बता देती? उसने शर्मिंदगी से कहा। तो वो दोनों हंसते। अब ज़्यादा बनो नहीं ज़ियान भाई, और तुम नहीं कोई प्लानिंग की होगी? सदिया हानिया को हाँक मारते हुए कहा। प्लानिंग? और बड़बड़ाई। फिर गौर कर रिदा को देखा। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? मैं इस देव के साथ प्लानिंग करूँगी जिसका पता है मुझे मौलवी साहब के निकाह पढ़ते हुए चला था। दांत फीस कर गुस्से से रिदा को देखा। क्या आप मेरे इतने प्यारे भाई को देव कह रही हो? रिदा की सदमे से आंखें निकल गई। प्यारा, उसने नगारे से सर झटका। अगर वो देव तो तुम पर ही हो, जिसे उन्होंने हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लेना है। हिना मानी है इसे नजरों से देखती मुसलसल छेड़ रही थी। वैसे कोई बात तो हुई होगी इन गुजरे दिनों में। अपना हाथ उसके कंधे पर टिका के मानी के अंदाज में कहा तो नाइल की नज़रों के सामने वही मंजर लहरा गया। खुद पर इन दोनों की जमी नजरें महसूस करती न चाहते हुए भी सुर्ख पड़ गई। ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, हटो, मुझे नींद आ रही है। उसने इन दोनों के बीच से निकलना चाहा, मगर उन्होंने कहका लगाते हुए पकड़ लिया। जितनी नींदें पूरी करनी है मैके में ही कर लो, क्योंकि बाद में देव अपनी परी को सोने नहीं देगा। इन्हें कितने बेबाकी से कहने पर उसका दिल बहुत जोर से धड़का। गाल बिल्कुल सुर्ख पड़ चुके थे। हिना, इसे तो शर्माना भी आता है, देखो, रिदा ने उसके लाल होते चेहरे को देखकर कहा। तो वो रिदा को हाथ मारकर उठी और हिना को घूरने लगी। ये राहम भाई की सोबत का असर है, तुम बिगड़ती जा रही हो। दोनों खुलकर हंसी तो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। कभी गरूर नहीं किया। बाल एक आधा से पीछे डालते हुए कहा, चलो हम भी तुम्हें देखेंगे, तुम पर ज़ैन भाई का असर हो कैसा होगा। इन्होंने फिर से उसे छेड़ा। वह पिछली कमरे से जाने लगी जब दुआ गुस्से से अंदर दाखिल हुई। आपने शादी कर ली? वो सदमे से बोली। उसे भी अभी राहम से उसके निकाह का मालूम हुआ था। क्या बकवास कर रही हो, निकाह हुआ है बस, उसने गुस्से से झिंझला कर कहा। तो इन दोनों को हंसने का एक बार फिर मौका मिला था। तो टेंशन की कोई बात नहीं, बड़े पापा ने नेक्स्ट मंथ तक रुख्सती फिक्स कर दी है। इन्होंने मनाल के सर पर बम फोड़ा था। वो सदमे से उसे देखने लगी, जबकि दुआ खुशी से चीख उठी। वाह, कितना मज़ा आएगा, मेरी प्यारी बहनी अब बनेगी दुल्हनिया। वो तीनों खुशी से अपनी बेसुरी आवाज़ में गुनगुना रही थी। उसे रोना आने लगा। तीनों उसके आंसू देखकर घबरा गए
अरे पागल, रुक दिया थोड़ी है, 1 महीने बाद है। रिदा ने फिर उसे छेड़ा तो उसे गुस्से से देखने लगी। देखती मैं भी कैसे होती है, रोकती उसे साइड में करते दोबारा बाथरूम में घुस गई, क्योंकि मुझे 3 लोगों से बहस करने की हिम्मत न थी। उसके जाने के बाद तीनों ने हैरत से बंद दरवाजे को देखा और फिर हंस पड़ी। जियान के सुबह वक्त वो कमरे में इधर उधर से चक्कर काट रही थी। उसे कमरे में आता देखना गंवारे से देखने लगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, उन्होंने रोते हुए कहा तो वह तड़प उठा और फौरन उनके करीब आया। प्लीज़ मामा, यूँ तो ना रोएं, बस एक बार मेरी बात सुन लें। उन्हें पकड़कर बेड तक लाया और खुद उनके कदमों में बैठ गया। क्या बताओगे तुम, अब जब बाप के फैसले पर सर झुकाकर इस मनहूस बदतमीज लड़की से शादी कर बैठे हो? उन्होंने उसका हाथ झटकते हुए कहा। बस एक बार मेरी बात सुन ले। बहुत मोहब्बत से उनके हाथ अपने मजबूत हाथों में थामे। इस वक्त चाचू की हालत ऐसी थी कि सब कुछ जल्दी में करना पड़ा। उसे भी कुछ मालूम नहीं था, बस चाचू की हालत को देखकर सब खामोश हो गए। उन्होंने उसे घूरा तो एक तुम ही रह गए थे बलि का बकरा बनने के लिए, किसी और से बढ़ा देते उसका निकाह। वो अब क्या कहता सिवाय सब्र करने के। अच्छा आप ये बताइए, मसला क्या है? इससे निकाह करने पर या बगैर बताए करने पर? दोनों पर। रूठ कर बोली तो उठकर इनके बराबर में बैठ गया। दूसरी बात पर मैं आपसे एक्सक्यूज कर चुका हूँ और पहली पर मेरा इख्तियार न था। बाबा ने कहा तो मुझे करना पड़ा। वो बातों को गोल मोल करके बताने लगा। और मसला इस बदतमीज लड़की का इतना बड़ा है नहीं, अब तो वो आपके कंट्रोल में होगी। उसने हंसते हुए उन्हें आइडिया दिया तो उन्होंने गौर से उसे देखा। उसके चेहरे पर मराहल के लिए कोई जज्बात न थे। वो कुछ मुतमईन हुई। तो इसे पसंद तो नहीं करता? उन्होंने मशकूक अंदाज में उसे देखा। तौबा करे मामा, मैं किस जंगली बिल्ली को पसंद करने लगा? इतना बुरा टेस्ट नहीं है मेरा, मैंने सिर्फ बाबा का हुक्म माना है। उन्हें बाजू हल्के में लेकर मुस्कुराते हुए बोला तो मोहब्बत से अपने लाडले को देखने लगी। लेकिन तेरे लिए मैंने हमेशा ईशा को सोचा था। उन्हें फिर से दुख सताने लगा। जिया ने हैरत से उन्हें देखा। अच्छा हुआ आपने सिर्फ सोचा, मुझे नहीं बताया, उसने कड़वा सा मुंह बनाकर कहा। क्यों, क्या बुराई है उसमें? उन्होंने गुस्से से कहा। मैं ऐसी लड़की चाहता था जो आपकी खिदमत करे, ये नहीं कि आप उसकी खिदमतें करती फिरे। माँ के कंधे पर सर रखता हुआ बोला। लेकिन वो बड़ी प्यारी बच्ची थी, कितना दुख होगा उसे। उन्हें रह रह कर उसके लिए दुख हो रहा था। आप बिल्कुल टेंशन न लें, वो अक्लमंद लड़की है, समझ जाएगी। उन्हें तसल्ली देते उनकी गोद में सर रखकर लेट गया, मगर वो इसके सर में हाथ फेरती अपनी ही सोचों में उलझी थी। माँ मैं मर जाऊंगी, माँ प्लीज़ वापस चले। जब से रामीन ने उसे जियान और मनाहिल के निकाह की खबर दी थी, वो तो जैसे पागल ही हो गई थी। कितनी देर तक तो उसे यकीन ही नहीं आया था कि उसका जियान किसी और का कैसे हो सकता था। आंसू देके रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी तरह बेगम भी हैरान थी कि ये अचानक हुआ कैसे। क्या वो तो अब दाल का रिश्ता लेकर जाने वाली थी। देखा आपने, कहा था मैं बात कर लें उन लोगों से। मेरे भी उसके रिश्ते की निकल गई ना वो मेरे हाथ से। वो भी उससे सच्ची पड़ा था, क्योंकि वो तो आगे की कितनी प्लानिंग कर चुका था, मगर अब सब बर्बाद हो गया था। हमें क्या पता था किस तरह अचानक निकाह करवा देंगे वो लोग। बिलखती ईशा के बराबर में बैठती हुई बोली। उसका बस नहीं चल रहा था अभी उन दोनों को गोलियों से छलनी कर दे। मेरी जान प्लीज़ संभालो खुद को, मैं फाइकल से बात करूँगी। उसे खुद से लगाकर तसल्ली देते हुए बोली। वो कैसे कर सकता है मेरे साथ ऐसा? उसने रोते हुए माँ से पूछा। अजीब दीवानों जैसी हालत थी, वो भी इंतकाम की आग में चल रहा था। मनाइल को इतने आराम से अपने यहाँ से निकलता हुआ इन्हें देख सकता था। माँ मैं टिकट्स कंफर्म करवा रहा हूँ, आप पैकिंग करें। सीधा बेगम कहता बाहर निकल गया। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।